So good morning, students. We are studying shaper operations. So far we have studied principle of shaping machine. In this lecture, we will see what are the various types of shaper machines and what is quick return mechanism, which makes the return of RAM of the shaper machine faster. So that will be very, very important. So you can see this slide. The shaper machines can be classified in 4 ways. According to the type of driving mechanism, the shaper machine can be crank type. Basically, it is crank and slotted link. Crank type shaper machine, gear type shaper machine, and hydraulic type shaper machine. In crank type shaper machine, crank and slotted link is used, or it can be Whitworth quick return mechanism also. We will see in the next slide that there are 3 types of quick return mechanism which are used for obtaining quick return. Those are either hydraulic, crank and slotted link, or Whitworth. So one shaper machine which utilizes crank and slotted link quick return mechanism, that machine is known as crank type shaper. Similarly, geared type shaper are currently now not used. These were used earlier, and these simply uses rack and pinion arrangement for moving the ram. Hydraulic type shaper machine is the shaper which utilizes a hydraulic system for obtaining quick return mechanism. So this is the classification according to the type of driving mechanism. According to the type of ram travel, whether it is traveling in horizontal direction or vertical direction, the shaper machine can be classified as horizontal shaper and vertical shaper. So I think there will be no doubt uh, in, in the second case. Horizontal shaper is the shaper in which ram travels in horizontal direction, whereas vertical shaper is the shaper machine in which the ram travels in vertical direction. This machine is also known as slotter. Vertical shaper is also known as slotter, slotter. Okay. So this is second classification. Third classification is according to the type of table design. According to this, there are 2 types of shaper machine, standard shaper and universal shaper. So a horizontal shaper is a standard shaper in which the ram reciprocates in horizontal plane, whereas universal shaper is the modification of the standard shaper. ये वही है जो कि स्टैंडर्ड शेपर है. इसमें सिर्फ 2 डिफरेंस आते हैं कि टेबल कैन बी स्विवेल्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. टेबल होती है उसके हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्विवेलिंग करा सकते हैं, एंड टॉप पोर्शन ऑफ द टेबल कैन ऑल्सो बी टिल्टेड बाई सर्टेन डिग्रीज. ये एंगल लिमिटेड होता है 5 डिग्री अराउंड समथिंग. So table can be also tilted. So table have 2 type of motion, swiveling motion as well as tilting motion. So a standard shaper having these 2 motion, that means if a table of standard shaper is having these 2 motion, then it is known as a universal shaper. In our workshop, we are having a standard shaper where ram reciprocates in horizontal plane. Its table cannot be swiveled. ठीक है ना. हमारे वर्कशॉप में जो शेपर है वो कौन सी है, स्टैंडर्ड शेपर है. Now fourth classification is according to the type of cutting stroke. Normally, as I told you, or I taught you that a shaper machine performs cutting operation in forward stroke only. That means forward stroke of the ram of a shaper machine is the cutting stroke. So that type of shaper is known as push cut type shaper. According to the type of cutting stroke, there are 2 classification, sub-classification, push cut type shaper and draw cut type shaper. So push cut type shaper is the shaper in which the cutting takes place in the forward stroke. Okay? But a draw cut type shaper is also there in which the cutting takes place in return stroke and its forward stroke is idle. Okay? So this is the basic difference between these two. ड्रॉ कट शेपर वो शेपर होती है जिसमें कटिंग या मशीनिंग जो होती है वो रिटर्न स्ट्रोक में होती है और उसका फॉरवर्ड स्ट्रोक कैसा होता है, आइडल स्ट्रोक होता है. तो इस पूरे क्लासिफिकेशन में से ये चीज समझने की है कि व्हाट इज ड्रॉ कट टाइप शेपर. ड्रॉ कट टाइप शेपर क्या है, इट एक्ट्स जस्ट अपोजिट टू द पुश कट टाइप शेपर. ठीक है ना. हमारे वर्कशॉप में जो शेपर है वो स्टैंडर्ड शेपर भी है और वो पुश कट टाइप शेपर. नॉर्मली जितनी भी शेपर मशीन यहाँ पे लिखी गई हैं, all shaper machines are push cut type shaper machines. Only this shaper is a draw cut type shaper machine in which
द कटिंग टेक्स प्लेस इन रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद में रखनी है कि ड्रॉ कट टाइप सेपर वो सेपर होती है जिसमें कटिंग रिटर्न स्ट्रोक में होती है, या रिटर्न स्ट्रोक ही वहां पे कटिंग स्ट्रोक होता है। ओके, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे? नो डाउट, आगे चलते हैं अपन। अब नाउ वी हैव टू स्टडी क्विक रिटर्न mechanism. So what is quick return mechanism? RAM moves at a comparatively slower speed during the forward cutting stroke. Okay, but during the return stroke, the mechanism is so designed to make the tool move at a faster rate, thus to reduce the idle return time. मतलब जब वो रिटर्न हो रहा होगा, रैम रिटर्न हो, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अब आ रही है बेटे? यस सर। यस सर। ठीक है, तो पिछली स्लाइड तो समझ में आ गई होगी, अपन स्लाइड को समझते हैं कि जो क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है वो क्यों अप्लाई की जाती है। सिर्फ इसलिए अप्लाई की जाती है जिससे कि जो रैम का रिटर्न मूवमेंट हो या रिटर्न स्ट्रोक हो या टूल का रिटर्न स्ट्रोक हो वो कम से कम समय में पूरा हो, जिससे कि मशीनिंग के लिए टाइम कम से कम लगे। एक्चुअली मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए सेपर में जितने फॉरवर्ड स्ट्रोक की आवश्यकता होती है उतने ही नंबर यहाँ पे रिटर्न स्ट्रोक की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, क्योंकि एक फॉरवर्ड स्ट्रोक जब पूरा होगा तो टूल अपनी पुरानी स्थिति में जाएगा, इसलिए रिटर्न स्ट्रोक होना भी जरूरी है, तभी जाके सेकेंड फॉरवर्ड स्ट्रोक वहां पे आ पाएगा। तो यहाँ पे क्विक रिटर्न मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है और वो रिटर्न को क्विक करता है। तो यहाँ पे 3 प्रकार की मैकेनिज्म इस्तेमाल की जाती हैं: क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक, हाइड्रोलिक एंड व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। ठीक है ना, 3 मैकेनिज्म है वहां पर: क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म एंड व्हिटवर्थ मैकेनिज्म। इन दो में तो कोई मैकेनिज्म इस्तेमाल होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट इस्तेमाल होता है। उसमें बाल्ब की ओपनिंग और क्लोजिंग से ही, ठीक है, जहां पे हाइड्रोलिक ऑयल सर्कुलेट हो रहा है जिसकी वजह से जिसकी प्रेशर की वजह से रैम रेसिप्रोकेट्स होता है, तो उनकी प्रेशर की वजह से हम क्या करते हैं, रैम के रिटर्न को क्विक कराते हैं और वहां पे बाल्ब की ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये दोनों मैकेनिज्म मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। नॉर्मली जो कॉमन है इसमें क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म, जो कई बार क्रैंक मैकेनिज्म कहलाती है, उसके थ्रू अपने इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डाउट है इन दोनों स्लाइड में? टाइप्स ऑफ सेपर मशीन्स एंड सर बेसिक पुशकट इंट्रोडक्शन टू क्रैंक सेपर। एंड स्लॉटेड लिंक। सर क्विक रिटर्न मशीन को एक बार समझा पुशकट से दीजिए। देखो, पुशकट सेपर, ये सारी की सारी सेपर पुशकट सेपर ही हैं, जिसमें रैम आगे की तरफ धक्का देती हुई चलती है या उसका फॉरवर्ड स्ट्रोक में वहां पे कटिंग होती है। तो चाहे वो क्रैंक टाइप हो, गियर टाइप, हाइड्रोलिक टाइप, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्टैंडर्ड, यूनिवर्सल पुश, ये सारी की सारी पुशकट सेपर हैं। सिर्फ यहाँ पे जो लास्ट में लिखा गया है ड्रॉप कट सेपर, ये ऐसी सेपर होती है जिसके रिटर्न में कटिंग होती है, या रिटर्न स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक होता है और फॉरवर्ड स्ट्रोक कैसा होता है, आइडल स्ट्रोक होता है। ठीक है ना। अभी मैं आपको एक मैकेनिज्म जो हम यस लोग सर। वर्कशॉप में प्रैक्टिकल करते थे उसको मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, मेरे पास रखा है, पुराना वाला वीडियो रखा है। कर रहा हूँ, वीडियो है हल्का छोटा सा। तो जो ये हमारी वर्कशॉप में जो अवेलेबल सेपर मशीन है उसका ही मैंने बेसिकली वीडियो, लेकिन अभी इमेज आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें है क्या है, यहाँ पे ये गियर आपको दिख रहा है, बाद में इसका मैं वीडियो भी दिखाऊंगा चलते, जिसकी वजह से ये रैम रेसिप्रोकेट करेगा। आपको सब हल्का सा फिगर दिखा नहीं देता हूँ। दिख रहा है। फिगर नहीं दिख रहा है? नहीं सर, वो नहीं स्लाइड सर। दिख रहा है टाइप ऑफ सेपर मशीन का।
अच्छा नहीं आया ना, अभी नहीं आया। किया जाए, क्या किया जाए इसके लिए? अभी भी नहीं दिख रहा बेटे? नो सर। नो सर, दिखा रहा है स्टार्टेड स्क्रीन बट स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, उसमें कुछ गड़बड़ हुआ है मतलब। अब ये स्लाइड भी गायब होगी ना, स्लाइड भी नहीं दिख रही है अब तो। ये सर स्लाइड नहीं दिख रही है। अरे आज कुछ गड़बड़ है इसमें। इसके पहले अपन ने वीडियो देखे हैं, वो अच्छा काम करते थे, और है ना। यस सर। यस सर। इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, फिर से मैं स्टॉप करके दोबारा सर स्लाइड दिखने स्क्रीन लगी। दिख रही है। अब दिख रही है बेटे? स्क्रीन दिख रही है अभी? यस सर दिख रही है। हाँ, मैं देखो कोशिश ट्रांसपेरेंट करता हूँ फिर फोल्डर से, ये। यदि वो अवेलेबल हो जाता है तो मैं आपको वो दिखाऊँ, अदरवाइज इसमें कुछ प्रॉब्लम है फिर। टाइम ले रहा है एक्चुअली। ठीक है, दिख गया मैं जब। यस सर, वीडियो दिख रही है। ये हमारे वर्कशॉप में जो अवेलेबल है, जो शिपर मशीन है, उसको ही हमने अंदर से दिखाया हुआ है। इसमें ये 2 गियर आप यहाँ पे फोकस कीजिए। एक छोटा सा गियर है जिसको बोलते हैं पिनियन, और ये जो बड़ा होता है जिसको बोलते हैं बुल गियर, BULL। चूंकि बड़ी साइज का होता है इसलिए इसको बोलते हैं बुल गियर। ठीक है ना। इसके ऊपर यहाँ पे आपको एक स्लॉट, ये लिंक है बेसिकली, जिसके अंदर स्लॉट बना हुआ है। जब अपन वीडियो देखेंगे तो उसमें चलती हुई दिखेगी, यहाँ पे है ना, ये स्लॉट दिख रहा है ना आपको? यस सर। ठीक है ना। ये स्लॉटेड लिंक है। सो दिस इज स्लॉटेड लिंक, दिस इज पिनियन, दिस इज बुल गियर। और यहाँ पे ये एक स्लाइडर है, एक ब्लॉक है जो इसके अंदर स्लाइड करता है, जो आपको खाली जगह दिखी ना इसमें स्लाइडर ब्लॉक में, स्लॉटेड लिंक में जो स्लॉट दिखा है, इसके अंदर ये रेक्टेंगुलर ये स्लाइड करता है। और इसके बीच में एक गोल चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, वो की क्या है? क्रैंक है, या पेन अपन उसको बोलेंगे, वो पेन है। ठीक है ना।
तो हमारा पर्पज होता है कि हमें इसको मूवमेंट देना है, तो कैसे मिलेगा उसके लिए मैं फिर से आपको कोशिश करता हूँ दूसरा वाला वीडियो दिखाने की, यदि वो दिख जाता है तो। ठीक है, ये वीडियो आपको दिख रहा हो, देखो अब दिखेगा, अभी कुछ समय के अंदर आपको यस सर। दिखेगा। ये इसको थोड़ा सा धीमे, मैं इसको धीमे तो नहीं कर पाऊंगा अभी, लेकिन ये देखना, ये चलती हुई दिखेगी आपको, देख रहा है? यस सर। जिसमें रैम का आपको रेसिप्रोकेशन दिख रहा है, बट द रेसिप्रोकेशन ऑफ रैम इज बीइंग अचीव्ड बाय यूजिंग दिस डिवाइस, जिसमें कि ये पिनियन है और ये क्या है, यहाँ पे बुल गियर है, इस स्लॉटेड लिंक है और बीच में यहाँ पे। तो अपन इसके साथ साथ यहाँ पे इस फिगर को देखते हैं, हमें दोनों चीजें एक साथ देख के समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द रैम एंड द फ्रंट फेस ऑफ द रैम वी माउंट द कटिंग टूल। यहाँ पे क्लैपर बॉक्स होता है, टूल हेड होता है, इसके ऊपर अपन क्या कटिंग टूल लगाते हैं। वो उल्टा भी बनाया जा सकता है, इसके फिगर इधर भी हो सकता है, लेकिन हमारा मूवमेंट भी वैसे ही दिख रहा था, हमारा फिगर भी है वैसे के वैसा है। तो इसमें दिस इज पिनियन, जो छोटा गियर मैंने आपको दिखाया था, दिस इज द पिनियन इन दिस 2 डायमेंशनल फिगर, और जो बड़ा वाला मैंने आपको दिखाया था, दिस इज द बुल गियर। जो बड़ा वाला सर्कल है, इट इज रिप्रेजेंटिंग बुल गियर, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो ये लिखा हुआ बुल गियर। एंड दिस इज द स्लॉटेड लिंक, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, दिस इज द स्लॉटेड लिंक। तो यहाँ पे पिनियन है, बुल गियर है, स्लॉटेड लिंक है। अब क्या होता है, जो बुल गियर रहता है वो इसके एक फेस पे माउंट रहता है, बेसिकली जो कॉलम रहता है, कॉलम के अंदर वो एक पिन पे टका होता है, ठीक है ना, और ये रोटेट कर सकता है। लेकिन इसका जो रोटेशन है बुल गियर का, वो रोटेशन किसके द्वारा दिया जाता है, पिनियन के द्वारा दिया जाता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल मोटर होती है मशीन की, वो क्या करती है, किसी आरपीएम पे इस पिनियन को रोटेट कराती है, और चूंकि पिनियन मैच होता है बुल गियर के साथ में, तो पिनियन का जो रोटेशन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके साथ में, ये बुल गियर को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। अब यदि हम इस बुल गियर का और स्लॉटेड लिंक का कोई कनेक्शन नहीं रखें, तो हमारा रैम यहाँ पर रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस बुल गियर का कनेक्शन स्लॉटेड लिंक के साथ करते हैं, क्योंकि स्लॉटेड लिंक ऊपर जाके एक छोटी लिंक होती है और ये इसमें रैम में फंसी होती है, यहाँ पर टाइट होती है, तो उसकी वजह से जब ये बुल गियर रोटेट होता है, उस केस में इस स्लॉटेड लिंक का यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन होता है, जिसको रॉकिंग मोशन देखा गया, राइट की तरफ जाएगा फिर लेफ्ट की तरफ आएगा, फिर राइट की तरफ जाएगा फिर लेफ्ट की तरफ आएगा, तो इसको रॉकिंग मोशन बोलते हैं। और ये जो स्लॉटेड लिंक है, ये इस एंड पे यहाँ पे फिक्स होती है, हिंज्ड होती है बेसिकली, सो दैट इट इज एबल टू हैव रॉकिंग मोशन अबाउट दिस फलक्रम, ये इसका फलक्रम पॉइंट होता है, जिसके आउटर रॉकिंग मोशन करती है, ठीक है। और इस लिंक के ऊपर की तरफ हमने कनेक्शन किया हुआ है किसका, रैम का। तो जब ये रॉकिंग मोशन होती है, इसकी टू एंड फ्रो टाइप की मोशन होती है, उस केस में रैम को कौन सी मोशन मिलती है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलती है, ठीक है। अब हमारा काम बचता है कि हमको स्लॉटेड लिंक का कनेक्शन किसके साथ करना है, बुल गियर के साथ करना है। तो हम क्या करते हैं, बुल गियर के ऊपर फेस में एक पिन लगा देते हैं, जो पिन यहाँ पे आपको दिख रही होगी, गोल पिन है, और वो क्रैंक पिन उसका नाम लिखा गया है। क्रैंक पिन किसके अंदर हाउस होती है, क्रैंक पिन लगी होती है स्लाइडर ब्लॉक में, ठीक है। और स्लाइडर ब्लॉक चूंकि फिक्स होता है किसके साथ में, इस स्लॉटेड लिंक के साथ में, तो स्लाइडर ब्लॉक यहाँ पे सिर्फ ऊपर नीचे होता रहता है। और क्रैंक पिन, देखो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, बुल गियर के फ्रंट फेस से निकल के क्रैंक पिन आई हुई होगी, जो कि फंसेगी किसके अंदर, स्लाइडर ब्लॉक के अंदर। और स्लाइडर ब्लॉक किसके अंदर फिट हुआ है, स्लाइडर ब्लॉक फिट हुआ है जो स्लॉटेड लिंक के अंदर यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है, ठीक है। तो इस क्रैंक पिन की मदद से, जो कि बुल गियर के ऊपर फिक्स है, हमारा कनेक्शन किसके साथ हो जाता है, स्लॉटेड लिंक के साथ हो जाता है। अब मान लो ये एक टर्न रोटेशन ले रहा है, बुल गियर कितना रोटेशन ले रहा है, सिर्फ एक टर्न ले रहा है। तो जब स्लॉटेड लिंक की पोजीशन, सॉरी क्रैंक पिन की पोजीशन यहाँ पे है, तो स्लॉटेड लिंक इस पोजीशन में, जब ये रोटेट होकर नीचे आएगी, तो चूंकि इस क्रैंक पिन का कनेक्शन स्लाइडर ब्लॉक के साथ में है और स्लाइडर ब्लॉक फंसा हुआ है स्लॉटेड लिंक पे, तो ये किसी न किसी प्रकार से मोशन प्रोवाइड करेगा। ये इसके अंदर ऊपर नीचे होगा, जो स्लाइडर ब्लॉक होगा वो स्लॉटेड लिंक के अंदर जो स्लॉट बना हुआ उसमें सिर्फ ऊपर नीचे हो पाएगा, लेकिन क्रैंक पिन यहाँ पे रोटेट करेगी, तो क्रैंक पिन का यहाँ का मूवमेंट कैसा होगा, रोटेशन मूवमेंट होगा, क्योंकि ये हमने फिक्स कर दी किसके साथ में, बुल गियर के साथ फिक्स कर दी है। और उसका दूसरा एंड, एक एंड तो फिक्स हो गया बुल गियर के ऊपर, लेकिन दूसरा एंड फ्री है, जिसको हमने फंसाया हुआ, किसमें फिक्स किया हुआ है, हमने फिक्स किया हुआ है स्लाइडर ब्लॉक के साथ में। और स्लाइडर ब्लॉक आगे जाके
फिक्स होता है किसके अंदर, स्लॉटेड लिंक के अंदर, स्लॉट में, जिससे ये यहाँ पे ऊपर नीचे ट्रेवल कर सकता है। और जब ये क्रैंक पिन रोटेट होती है, क्योंकि बुल गियर रोटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्रैंक पिन रोटेट होगी, और क्रैंक पिन अपना जो मूवमेंट वो ट्रांसफर करेगी किसको, स्लाइडर ब्लॉक को। स्लाइडर ब्लॉक सिर्फ इस स्लॉट के अंदर ऊपर नीचे होगा, लेकिन उसकी वजह से इस स्लॉटेड लिंक को यहाँ पे रॉकिंग मोशन मिलेगा। और रॉकिंग, चूंकि ये स्लाइडर ब्लॉक का ऊपरा एंड जो टॉप एंड है, इट हैज फिक्स्ड इनटू दिस रैम, दैट्स व्हाई रैम विल गेट रेसिप्रोकेटिंग मोशन। आया कुछ कुछ समझ में? यस सर। देखो अब इसका फिर से मैं सर आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाँ बोलो। सर ये जो क्रैंक पिन मूव करेगा तो सर वो बेवल गियर की पोजीशन क्या होगी? अभी बेवल गियर मत समझो आप, अभी मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। आपको देखना है ठीक है सर। क्रैंक पिन को, ठीक है ना। तो ये पिनियन यस है, सर। ठीक है, ये बुल गियर है, चूंकि रोटेशन ये वीडियो का है इसलिए आपको यहाँ पे टीथ नहीं दिख रहे होंगे, बट ये मोशन में है यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, इस बुल गियर की फ्रंट फेस में यहाँ पे क्या लगाया, क्रैंक पिन लगाया, ठीक है ना। तो और क्रैंक पिन का एक एंड तो फिक्स हो गया किसके साथ में, बुल गियर के साथ, दूसरा एंड जो बाहर प्रोजेक्टेड है, ठीक है, एक कुछ पिन है, कुछ लेंथ की होगी, लंबाई की होगी, तो उसके दूसरे एंड को हमने फिक्स किया किसके अंदर, इस स्लाइडर ब्लॉक के अंदर। और स्लाइडर ब्लॉक कहाँ पे माउंटेड है, स्लाइडर ब्लॉक इस स्लॉट के अंदर माउंटेड है, जिससे ये स्लॉट के अंदर ही ये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन चूंकि जब क्रैंक पिन रोटेट होती है तो स्लाइडर ब्लॉक इस स्लॉट के अंदर ऊपर नीचे होगा, उसकी वजह से इस स्लॉटेड लिंक को क्या होगा, रॉकिंग मोशन मिल रही होगी, ठीक है ना, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें समझना है कि वाई दिस बेवल गियर इज देयर, ठीक है ना। क्या कारण होता है कि हमें ये जो इसके आगे यहाँ पे क्या लगा होगा, टूल लगा होगा, और वो टूल कहाँ रेसिप्रोकेट कर रहा होगा, टेबल के ऊपर। उस टेबल के ऊपर क्या माउंट होगा, वर्क पीस। वर्क पीस की लेंथ कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो ठीक है ना। कई बार हमें छोटे वर्क पीस की सरफेस को मशीन करना है, कई बार एक लंबे वर्क पीस की सरफेस को मशीन करना होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इस अरेंजमेंट को समझो। यदि हमने क्रैंक पिन को उठा के बुल गियर के सेंटर पे ले आए, ध्यान से सुनना इस चीज को। इफ वी पोजीशन दिस क्रैंक पिन एट द सेंटर ऑफ द बुल गियर, तो क्या उस केस में इस क्रैंक पिन का कोई रोटेशन होगा, हाँ या ना? यस, ये रोटेट करेगी अपने एक्सिस यस के सर। अबाउट यहीं की यहीं, लेकिन इसका रिवॉल्यूशन नहीं होगा। उस केस में ये अपनी हाफ जगह पे साइकिल यहाँ होगा पे ना सर? स्थिर रहेगी, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर में है, यहाँ पे बुल गियर के सेंटर में। तो जब हम क्रैंक पिन को उठा के बुल गियर के सेंटर पे माउंट कर दिए हमने यहाँ पे, और स्लॉटेड जो स्लाइडर ब्लॉक है वो भी यहीं पे है, तो स्लॉटेड लिंक को यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं मिलेगा, फिर ना ये ऊपर नीचे होगा, क्योंकि वहीं पे रोटेट हो रही होगी अपने एक्सिस के अबाउट। लेकिन जैसे ही हम इस क्रैंक पिन को ऑफसेट करते हैं इस बुल गियर के सेंटर से कुछ दूरी पे, हल्का सा 5 mm 10 mm 20 mm, जितना भी आपको करना हो, तो जैसे ही हम इसको ऑफसेट करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक रेडियस जनरेट होती है, क्रैंक पिन की कुछ डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बुल गियर। तो अब क्या होगा, ये क्रैंक पिन का जो पाथ आएगा एक रोटेशन के लिए सर्कुलर पाथ में आ जाएगा, जिसकी रेडियस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो जैसे ही हमने इसको ऑफसेट दिया, तो अब ये रोटेट भी होगी, क्या रोटेट होगी, क्रैंक पिन, क्यों, क्योंकि बुल गियर रोटेट हो रहा होगा, और बुल गियर का रोटेशन कहाँ से हो रहा है, पिनियन की वजह से हो रहा है। तो क्रैंक पिन हमने रोटेट कराई है, और क्रैंक पिन की वजह से, चूंकि क्रैंक पिन का दूसरा एंड किस में फिक्स है, ये फिक्स है यहाँ पे किसके अंदर, स्लाइडर ब्लॉक के अंदर, और स्लाइडर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इस स्लॉट में। तो अब आपकी इस स्लॉटेड लिंक को टू एंड फ्रो मोशन या रॉकिंग मोशन यहाँ पे मिलने लगेगा। हम जितना ऑफसेट बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा इसकी रॉकिंग होगी, उतना सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर लिफ्ट हो गए क्या? RIP। सर वॉइस नहीं आ रही है।